A very good morning to all of you guys. My name is Ankush Gupta here at the Gate Coach, and today I am here to share my experience with all of you about how to get good 65-70 marks minimum in GATE 2021 chemical engineering exam. Okay, and just by the same manner you can understand, if any non-chemical engineering student is watching this video, you can consider the same reference for your subjects as well. Okay, anyways, although we have already shared some videos regarding the same, okay, in past years, okay, and I have shared the same thing in my classes with my students, okay, so still I wanna repeat the same, okay, and I hope the people like me, like I was in my BTech time, who no matter what is happening in the universe, but they are rigid that they will study only just 3-4 days or 1 week before the GATE exam. So I believe that this video may help all those students, okay, especially. So in chemical engineering it is possible to get good 65-70 marks in GATE exam. I am not saying that just by 1 week study it is possible for everyone, but yes, for some of the people, the only thing is your luck should be in your way, in your favor. Okay, anyways, so let's start our discussion about this topic. Okay, so in chemical engineering exam, see, first thing, there are few people who are just willing to qualify the GATE 2021 exam and just wanted to clear the cutoff. That's it, nothing else. उन्हें कोई ज़्यादा expectation नहीं है result से ना exam से. They just want to attempt the GATE exam to qualify it. Okay, and for qualification you may need around 35-40 marks. Okay, so on a safer side we can say 40 marks as average we need to qualify the GATE exam. Okay, and in 1 week time you may get those 40 marks as well. Just you need to focus on these few things, that in GATE exam there are few subjects which can help you to get through the cutoff. Okay, like mathematics. In our syllabus, that is engineering mathematics, the weightage of this subject is about 13 marks. Okay, the general aptitude section, the weightage of this section is about 15 marks. Mechanical operation, the weightage of this subject is about 4 to 5 marks. Chemical technology, the weightage of this subject is about 4 to 6 marks in GATE exam. Okay, other than this we have 1, 2, 3, what is the total? 28, 32, 34, 36. Okay, one more subject is there which you can include for yourself. That is your choice, whatever out of these 3 subjects which you can prepare in this 1 week. Okay, that is plant design and economics, or you can prepare process calculation. Okay, the weightage for both of these subjects is about 4 to 5 marks in GATE exam. Okay, so I will suggest you can go through with all these subjects, 4 to 5 marks each. Okay, for each subject, these 2. Okay, so if you see the total, this is 28, 32, 36, 40. The total is about 40 marks. And the best part is, in these subjects you can get all the 36-38 marks minimum easily. Okay, so by doing some planning, and in this 1 week you can just prepare the last
10 years previous year questions for these subjects, and it may help you to score all 36-38 marks in GATE exam. Okay, if you consider these both subjects, the total will be about 44 to 46 marks. Okay, so out of 44-46 you can get 38 to 40 marks minimum in GATE exam. So it may help you to qualify the GATE. Okay, just to qualify the cutoff, if the cutoff is in the range. Okay, although if you see last 10 years, only 2 times it happened that the cutoff was above 40 marks, but otherwise every time it is below 40 marks, about 34, 32, 36, 38 marks, like that. Okay, so this is for those people who are just willing to qualify the GATE exam by getting the cutoff marks, that's it. But as the purpose of the video was, how can we get effective 65-70 marks in GATE exam? Okay, so for that you need to add some more subjects in your you can say armory, and those are solution thermodynamics. The weightage is about 4 to 5 marks. You may include chemical reaction engineering and process dynamics control. The weightage of these 2 subjects is about 20 marks. Okay, plus heat transfer and mass transfer. Just do the GATE previous year papers of last 10 years and the concept from which they have asked the question in those years. Read those concepts very well. Okay, so with the help of that you will maybe able to get 6 to 7 marks minimum. Okay, out of 16 marks, about 16 marks from these 2 subjects. Okay, and in CRE-PDC out of 20 you may get easily 10 to 12 marks. Okay, because I believe that the people who are rigid, who whatever is happening in the universe, they don't care about that, they just do their hard work in last 1 week. Okay, so I believe that those people are actually believe in the effective study, and whatever they study in this time they can store for a longer duration, basically the quick learner people. Okay, so for those people I am just saying you may go with these subjects as well. By this you can get easily 50 marks minimum. Okay, and if you have prepared all the things, you are studying for this GATE exam from last 6-7 months. Okay, then I believe that you already know what to do. So for those people I wanna share only one thing about the GATE exam. Okay, what you need to do in those 3 hours. Actually this is for everyone, how to approach the GATE exam. Okay, so in GATE exam, during those 3 hours when you are in the exam room in front of your system, you are preparing for GATE exam. You are just about to start your GATE exam. Okay, so what things should be in your mind? First thing, the most important thing, don't expect anything from that exam paper and result. Okay, don't think anything about the result. Okay, why? Because that result, the rank which you are going to get in the GATE, is not in your hand. Okay, the simple logic is, in GATE exam we have a relative marking concept. Okay, and whenever we have the relative marking to the result, the rank is not in our hand. In our hand we have only our performance, that's it. Okay, because just think like, by chance if any one of you are able to score 95 marks, okay, you attempted the entire GATE paper and you are sure that you will get 95 marks in GATE exam. Okay, but suppose there are 2000 more students who appear who are getting more than 96 marks in GATE exam. So what will be your rank? Okay, definitely it is going to be out of top 2000. Okay, similarly in the entire exam, if you just get
इफ यू आर जस्ट एबल टू सिक्योर 35 और 36 मार्क्स, ठीक है, इससे ज़्यादा मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हुआ आपसे. एंड नन ऑफ द स्टूडेंट इन द एंटायर इंडिया in the GATE chemical engineering community was able to attempted the paper for more than 30 marks. So what will be your rank in that case? आपने 35 मार्क्स का पेपर किया, बाकी कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने 30 प्लस मार्क्स का पेपर किया हो, so your rank will be 1 for sure. Okay, so that's how we can understand that result is not in our hand. Okay, and plus बाकी लोग क्या कर रहे हैं, you cannot control their performance. Second, you can control only your own performance. Okay, so क्या करना है एग्जाम में in those 3 hours? First thing is just maintain your composure. ठीक है, अपना composure maintain रखना है. दूसरा, second, you have to be focused during the entire 3 hours. ठीक है, focus on each question one by one. That's it. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं you are on the 6th question and while you are reading that question, solving that question, in your mind, in the back end of your mind, you are thinking about the first 5 questions. ठीक है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए that while you are on the 6th question, you are thinking about the all remaining questions which are going to appear in front of you. ठीक है, तो जो क्वेश्चन सामने है बस उसके बारे में सोचना है, जस्ट उस पर फोकस रखना है. और यहाँ फोकस रखने का मीनिंग क्या है? फोकस रखने का मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हो, सिंपल, आपको वो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है. दैट्स इट. पीछे क्या है, आगे क्या है, फर्क नहीं पड़ता, जस्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. ठीक है, जब वो क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करोगे, सो व्हाट विल हैपन, ठीक है, आप फर्स्ट थिंग सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे. क्वेश्चन में डेटा 2.3 दिया है तो आप 2.3 ही कैलकुलेशन में लोगे, 3.2 नहीं कर दोगे बाय मिस्टेक. ठीक है, सेकंड थिंग, व्हेन यू विल रीड द क्वेश्चन 2 times at least, then you will actually understand what they are asking and then you can use your own mind and the exact equation which is required for that numerical or that problem to solve. ठीक है, simple. And the third advice which I am sharing with my experience, okay, never start the paper with 2 marks question directly. ठीक है, लालच नहीं करना है, डोंट बी ग्रीडी कि यार वी विल स्टार्ट द पेपर फ्रॉम 2 marks क्वेश्चन, पहले हम 2 marks के सारे क्वेश्चन कर लें, स्टार्टिंग में फ्रेश होंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, जस्ट थिंक लाइक क्रिकेट मैच भी अगर आप देखते हो, पहली ही बॉल से बंदा आके 6 नहीं मारता, और अगर बाई चांस पहली बॉल पे 6 लग भी गया तो नेक्स्ट गारंटी नहीं कि नेक्स्ट 20 बॉल्स पे वो 6 ही मारेगा और उसका स्कोर 120 हो जाएगा 20 बॉल्स में. ठीक है, प्ले द ग्रेट क्रिकेटर्स, ग्रेट बैट्समैन प्ले ईच एंड एवरी बॉल विद देयर मेरिट. अगर अच्छी बॉल है तो वो उसे डिफेंड करते हैं, अगर खराब बॉल है, लूज बॉल है, तो वो उस पर स्कोर करते हैं. ठीक है, बीट T20, बीट वनडे और बीट टेस्ट क्रिकेट. ठीक है, तो सिमिलरली इन गेट एग्जाम, जब आप या कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जो क्वेश्चन आपके सामने है उस क्वेश्चन को पढ़ना है. ठीक है, व्हेन यू विल रीड द क्वेश्चन देन एक्चुअली यू विल रियलाइज. ठीक है, तब आप अपने माइंड में सोच पाओगे कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता. अगर मैं कर सकता हूं देन यू विल गो फॉर दैट क्वेश्चन. अगर आपके माइंड में आंसर आता है नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या फिर इट इज टाइम कंज्यूमिंग लेंथी क्वेश्चन है, इसे बाद में देखेंगे, तो जस्ट मार्क फॉर रिव्यू एंड मूव अहेड. ठीक है, सोचना ही नहीं है उसके बारे में उस पे. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू रीड ऑल द 65 क्वेश्चन इन गेट एग्जाम. ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं क्वेश्चंस पे पेपर करना स्टार्ट करते हैं और बीच में वो खो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस पे वो बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दे वांट टू गिव सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट ऑन दैट क्वेश्चन. ठीक है, और इससे क्या होता है, टाइम तो ऑब्वियसली टाइमर तो जा ही रहा है. ठीक है, लास्ट में आप 65th क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते और बहुत सारे क्वेश्चन आप रीड ही नहीं कर पाए. ठीक है, और वो अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं और बाद में पता चलता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैं कर लेता, बट प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने ये क्वेश्चन तक पहुंचा ही नहीं, मैं पढ़ ही नहीं पाया इस क्वेश्चन को. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू विद ऑल 65 क्वेश्चंस. बिलीव मी, इन एग्जाम व्हेन यू विल रियलाइज बाय योरसेल्फ. ठीक है, शुरू में इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डजंट मैटर. बीच में इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डजंट मैटर. बट लास्ट में जो क्वेश्चन होंगे ना, जो आप लास्ट में अटेम्प्ट करने का ट्राई करोगे, वो कोई से भी सिक्वेंस में हो, वो आपको इजी ही मिलेंगे.
ठीक है, तो इसलिए उन तक पहुंचना जरूरी है, समझ रहे हो। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, द सिंपल थिंग इज जस्ट गिव 1 or 2 अटेम्प्ट ऑन ईच क्वेश्चन, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि आपने चीजें पढ़ी हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको टॉपिक आता है, तो जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो आपको लगेगा यार ये तो आता है, मुझे आंसर नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूं, तो अंदर से आवाज आती है, समझो, इनर वॉइस बहुत सारी आती हैं, एग्जाम टाइम में तो बहुत आती हैं इनर वॉइस, या इस पर कुछ मैं कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं छोटी मिस्टेक हो रही है, ट्राई करता हूँ दोबारा, और वो दोबारा के चक्कर में ना 3rd 4th अटेम्प्ट पता नहीं कब हो जाता है, टाइमर चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। एंड फिर जब हम टाइमर को देखते हैं, अरे यार 30 मिनट बचे हैं और मेरे पास अभी 15 क्वेश्चन है जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, ठीक है, या 25 क्वेश्चन है जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, सिर्फ 1 घंटा है, तो हम पैनिक हो जाते हैं और जल्दबाजी में फिर सारे क्वेश्चन देखते हैं, और जल्दबाजी की वजह से क्या होता है, आते हुए क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन हम कर सकते थे वो हम वहां नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। और रीडिंग क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 times रीड करना है, नो मैटर व्हाट, टाइम कम है ज्यादा है फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। Believe me, if you are able to read the question minimum 2 times, then 99.99% चांस है कि आप उसका सॉल्यूशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ले आओगे, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट की नीड ही नहीं होगी, ठीक है। एंड एट लास्ट, वन लास्ट एडवाइस फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। एग्जाम हुआ, एग्जाम स्टार्ट हुआ, एग्जाम में गए, पूरा पेपर दे दिया, जो भी हुआ सारी चीजें हुई, लास्ट में इफ, ठीक है, जितना भी पेपर आता है आपने कर लिया, ठीक है, एंड एट लास्ट इफ यू आर गेटिंग 10, 15 और 20 मिनट्स एज स्पेयर टाइम, ठीक है, और आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं इन 15-20 मिनट में, पूरा पेपर तो मैं जितना कर सकता था मैं कर चुका हूं, ओके, सो उन 15-20 मिनट में अंदर से ये आवाज आएंगी, अंदर से बहुत आवाजें आती हैं, बिलीव मी, ठीक है। अंदर से आवाज क्या आएगी, 1-2 क्वेश्चन में गैस कर लेते हैं, फ्लूक लगा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, फर्क पड़ता है। अगर फ्लूक लगा नहीं है तो फिर उन क्वेश्चंस पे लगाना जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लाइक एमएसक्यू और एनईटीज, ठीक है, एमसीक्यू में नहीं। सेकंड, हम ना अपना स्कोर चेक करने की कोशिश करते हैं और फिर हम देखते हैं अरे यार 70 मार्क्स बन रहे हैं, अरे 80 मार्क्स बन रहे हैं, अरे 60 मार्क्स बन रहे हैं, फिर अंदर से एक और आवाज आती है, बहुत आवाजें आती हैं अंदर से एग्जाम टाइम में, देखना क्या यार टेस्ट सीरीज दी थी, टेस्ट सीरीज में तो 50-60 मार्क्स बन रहे थे, यहां 70 बन रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्या करूं। तो फिर ना हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन को हटाना शुरू कर देते हैं, आंसर्स को, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है यार मैं तो टॉपर ही नहीं हूं, आज तक तो टॉप किया नहीं, यहां पे कैसे 70 मार्क्स आ गए मेरे, ऐसा हम करते हैं, जनरली काफी लोग करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, जो कर दिया, बाद में रीचेक करने की जरूरत नहीं है, एंड डोंट रीचेक योरसेल्फ, ठीक है। लास्ट में अगर 1 घंटा फालतू बचा है ना तब आप रीचेक कर सकते हो, 15-20 मिनट बचे हैं तो रीचेक करने की नीड नहीं है, यू विल ओनली डू मिस्टेक्स इन दैट रीचेकिंग, ठीक है। सेकंड एंड द लास्ट थिंग इन एग्जाम, बी काम एंड कंपोज, बी स्ट्रेस फ्री, डोंट थिंक एनी अबाउट द रिजल्ट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रिजल्ट, द रैंक इज नॉट इन योर हैंड, ठीक है। तो आपके हैंड में क्या है, आपका कंपोजर, आप माइंड को कितना ज्यादा काम रख पाते हो। तो एग्जाम में अगर कंसेक्यूटिवली 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, पैनिक नहीं होना है कि यार 6 महीने से पढ़ रहा था, सारी मेहनत बेकार हो गई, मैं तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहा, क्या फायदा हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जस्ट रिलैक्स, 2-3 मिनट का ब्रेक लो, स्क्रीन से हट जाओ, थोड़ा सा चेयर को साइड में करके हेड डाउन कर लो, या फिर पानी पीने चले जाओ, या फिर वॉशरूम चले जाओ और स्ट्रेस रिलीज कर दो, ठीक है। एंड ट्राई टू मेडिटेट, 2-3 बार गहरी सांस लो, कोई मंत्र वगैरह आता है तो वो पढ़ लो, ठीक है, प्रेयर्स पढ़ लो, 2-3 मिनट के लिए होल्ड करना है। कोई गाना आपको पसंद है, फेवरेट सॉन्ग, उसे गुनगुना लो मन में, चिल्ला के नहीं, बाकी सब भी हैं, ठीक है। आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो सिर्फ अपने अंदर ही करना जो करना है, उसके बाद दोबारा एग्जाम स्टार्ट करो, ठीक है। वो 2-3 मिनट का ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल हेल्प यू टू कंट्रोल दोज पैनिक मूवमेंट्स,
ठीक है, क्योंकि पैनिक मोमेंट में अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आंसर आने के चांसेस, करेक्ट आंसर आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, बिलीव मी, दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू शुड कीप इन योर माइंड ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, बाकी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। कोई पर्सन, कोई बंदा इन 3-4 दिन में ना खुद को खुशी रखना है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ रहना है और बिंदास। क्या इतना पढ़ा है, ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम वाले दिन मैं सब भूल जाऊं। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए अपने ऊपर। ठीक है, नहीं है तो फेक इट। ओके, एंड अगर कोई बंदा या बंदी या फैमिली मेंबर कोई भी आपको ऐसा मिलता है जिससे बात करके आपको अचानक नेगेटिव थॉट आ रहा है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, या अचानक से डर लगने लगा एग्जाम के बारे में, तो एट द सेम मोमेंट कॉल योर मेंटोर और कॉल योर फैकल्टी, या आप मुझे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, जस्ट ट्रांसफर योर नेगेटिविटी टू अस। ओके, आप पॉजिटिव रहो, सिंपल। जितना आप मेंटली स्ट्रेस फ्री रहोगे उतना ज्यादा आपकी गेट एग्जाम में रैंक अच्छी आने के चांसेस होंगे। ठीक है, सो गुड लक गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम एंड टाटा।